ہوتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اور میں نے کل آپ کو اس کی تشریح یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سب پر برابر نازل ہوتی ہے، چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی برابر جاری ہے، اور ازل تا ابد یعنی کہ آغاز سے لے کر انجام تک مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم جاری و ساری ہے۔ تو یہ کل کا شعر تھا، اور آج دوسرا جو شعر ہم پڑھ رہے تھے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی میں نے شعر پڑھا دیا ہے ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا یکتا ہونا، بالکل بے مثل ہونا، باقی دنیا سے منفرد ہو جانا، انوکھا ہونا، باقی سب سے جدا ہونا، یکتا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ انفرادیت کی جو گواہی ہے وہ خود اس کی اپنی ہی ذات دے رہی، کہ جو دوئی کے نقش ہیں، دوئی کے نقش کا مطلب ہے کہ جو دوسرا ہے، دوئی سے مطلب دوسرا ہونا، اللہ کے علاوہ بھی کسی کا ہونا، اللہ کے علاوہ یعنی کہ اللہ بھی اس میں شامل ہے اور ساتھ کوئی آپ دوسرا بھی شامل کر لیں، تو یہ دوئی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے قرآن مجید میں آپ کو بار بار، اگر عقیدہ توحید کا درس سب سے زیادہ آپ کو دیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک جانو، اسی کو تسلیم کرو، اسی پر ایمان رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہے وہ کسی عام آدمی سے کسی طریقے سے نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ، کئی لوگ کہتے ہیں اللہ کس طرف دیکھے، اللہ اتنا مصروف ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تصور میں ہی نہیں لا سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ موجود ہے تو وہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آج وہ کسی اور کا کام کر رہا ہے، کل کسی اور کا کام کرے گا، وہ ادھر مصروف ہے اس وجہ سے ہماری حالت بری ہے۔ یہ ایسا کہنا بھی شرک میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے حقوق میں یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، خالق ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، مشکل کشا ہے، مشکلوں کو حل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی فریادیں سنتا ہے، فریاد رس ہے۔ اگر آپ کسی اور کو بھی اگر کہتے ہیں تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ حقوق کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ضرور جو چیز جائز ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا، جیسے سجدہ کرنا، سجدے والی کیفیت ہے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کسی اور کو دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے، لیکن آپ کسی اور سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے کہ تو بابا جی تو ہی دے سکتا ہے، تو یہ شرک میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی کہ تو ذرا سا ایک لمحے کے لیے اونگ کیا ہوتی ہے؟ ایک تھوڑی دیر کا سونا۔ لیکن اگر اسے اونگ بھی نہیں آتی تو نیند تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے اپنی کائنات سے غافل ہو، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس طرف دیکھ نہیں رہا، کئی لوگوں نے تو بہت کچھ کہا کہ اللہ تو اگر زمین پر اترے تو تجھے اتنے زخم لگے، اس طرح کی باتیں کی ہیں، سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
कहता है कि अगर कायनात में खुदाए वाहिद के सिवा कोई और खुदा होता तो उसका निज़ाम बिगड़ कर रह जाता। ये सूरह अंबिया की एक आयत है, आयत नंबर 22 है, उसका तर्जुमा है कि अगर कायनात में अल्लाह ताला के सिवा व खुदाए वाहिद के सिवा अगर कोई और खुदा होता तो कायनात का निज़ाम तो बिगड़ कर रह जाता। ये उसका मफहूम है उस आयत का। तो जब अल्लाह एक है, हम उसे मानते हैं, उसे तस्लीम करते हैं, और उसे तस्लीम करने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम फिर मुस्लिम रहते ही नहीं है अगर हम उसके सिवा किसी और को अपना फरियाद रस और अपनी दुआएं सुनने वाला समझते हैं, या ये समझते हैं कि अल्लाह दो हैं, एक बदी का है एक नेकी का है, जैसा कि वो पारसियों का ज़रतश्त जो थे उनका अकीदा था। तो यहाँ यही बात मौलाना ज़फ़र अली खान ने ये की है कि अल्लाह ताला की अपनी ही ज़ात उसके अकेले होने की गवाही दे रही है, और वो ये ज़ात ही ये किस बात की गवाही दे रही है कि दुई के नक्श यानी कि दो होने के जो नक्श हैं, निशान हैं, वो सब झूठे हैं। सच्चा है तो बस एक नाम उसका, यानी कि अल्लाह ही का नाम सच्चा है, अल्लाह ही हक है, अल्लाह ही पूरी दुनिया पर हावी और तारी है, अल्लाह ही सारी दुनिया का खालिक है, अल्लाह ही मालिक है। तो अल्लाह ताला की वहदत और तौहीद का यहाँ पर दर्स है इस शेर में कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई खालिक और मालिक नहीं है। और जो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई और भी है जो आपकी फरियादों को सुनता है तो वो झूठ कहता है। सच्चा है तो बस वही नाम है, अल्लाह ताला ही को पुकारो अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश आती है किसी भी लम्हे। तो ये इसका मफहूम था। हर एक जरा फिजा का दास्तां उसकी सुनाता है, यानी कि इस कायनात में जितने भी जर्रात हैं, अगर जरे जरे को भी गौर से देखेंगे तो अल्लाह की दास्तान उसमें छुपी हुई मिलेगी। हवा का झोंका, कोई भी झोंका जो आपके साथ आकर टकराता है, उस हवा के झोंके में अल्लाह ताला का पैगाम आपको मिलेगा। इस कायनात में यहाँ पर जो माहौल है, जो इर्द गिर्द हमारे फिजा, उसके अंदर जो जर्रात उड़ रहे हैं, अगर उन पर भी आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला की तख्लीक का, अल्लाह ताला के कादिर होने का आपको सबूत मिलेगा। इस कायनात में हर शय अल्लाह ताला की के वजूद पाक की गवाही दे रही है, और ये कह रही है कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह मौजूद है। और अगर आप हवा का झोंका आपके साथ आकर कभी टकराता है तो आप कभी कभी इस कदर गर्मी के शिकार होते हैं कि हवा का झोंका आपके लिए पैगाम देता है और आप बे इख्तियार होकर कह देते हैं सुभान अल्लाह, कि इस कदर खुशगवार महसूस होता है। वो सुभान अल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकीज़ा है, पाक है। तो वो इस बात का सबूत होता है कि आप अल्लाह ताला को मानते हैं कि ये जो हवा का झोंका आया है ये भी अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया, अल्लाह ताला के होने का एक सबूत है। ये तमाम कायनात जितनी भी अल्लाह ताला ने बनाई है, ये अल्लाह ताला की महारत और सनाई का मुंह बोलता सबूत है। जैसे कि अगर आप कोई तस्वीर देखते हैं, ये एक मैं वैसे मिसाल देता हूँ, अल्लाह ताला की मिसाल दी नहीं जा सकती, लेकिन आप तस्वीर देखते हैं तो अगर बेहतरीन कोई तस्वीर बनी होती है तो आपको फौरन आप ख्याल आता है कि इसका मुसव्विर कितना माहिर होगा। इसी तरह कोई शेर आप सुनते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, तो आप जब उसको तख्लीक को पढ़ रहे होते हैं तो आपको उसके खालिक की याद आती है कि यार ये खालिक कितना ज़हीन होगा। तो यही बात है कि जब आप कायनात पर गौर करते हैं तो आपको उसके खालिक का एहसास होता है। अगर आप एक एक जर्रे पर गौर करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की बड़ाई का पता चलता है। और आपको ये भी, आप साइंस के तालिब इल्म में हैं और ख़ास तौर पर बायो के,
मखलूकात हैं, बहुत सी, जो कि हमारी आंख से नजर ही नहीं आती। हमारी नजर कितनी तेज है, लेकिन हमारी नजर उससे भी बारीक। तो आप उन्हीं पर गौर करेंगे तो अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की बड़ाई का आपको एहसास हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप कोई भी फन पारा आप देखते हैं और उस पर गौर करते हैं तो आपको उसमें अल्लाह ताला की बड़ाई और हिकमत का एहसास होता है। हुस्न ही हुस्न, जलवे ही जलवे, सिर्फ एहसास की जरूरत है। तो अल्लाह ताला का हुस्न और अल्लाह ताला का जलवा जो है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको समझने के लिए आपके अंदर एक एहसास होना चाहिए, मोमिन का दिल होना चाहिए। अगर मोमिन का दिल नहीं है आपके अंदर तो आप कभी अल्लाह ताला की हिकमत और बड़ाई को नहीं तस्लीम कर सकते। और छोटे से छोटी चीज भी उस अल्लाह ताला, जर्रा इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया क्योंकि जर्रे का मकसद ही ये होता है कि किसी चीज के छोटेपन का या छोटे होने का एहसास आपको दिलाया जाए कि अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज भी तख्लीक करता है और बहुत बड़ी बड़ी तख्लीक भी करता है। यानी कि पूरी की पूरी कायनात उसकी तख्लीक है और उस कायनात में बारीक से बारीक चीज भी है, वो भी अल्लाह ताला की सन्नाई की गवाह है। अगर आप गौर करें कभी बाहर जाकर तो ये फसलों की जो लहलहाहट है, ये परिंदों की जो चहचहाहट है, ये जो आबशारों की आवाजें हैं, ये जो दरिया बह रहे हैं, ये पहाड़ों की खूबसूरती है, ये जो मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं, जो समंदर के अंदर मद्दोजज़र है और समंदर पर इंसान का काबू पाना है। और आप ये देखें कि क्या क्या ऐसी चीजें नहीं है जिसमें अल्लाह ताला की हिकमत और बड़ाई का पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला एक एक चीज को अगर आप महसूस करेंगे, उसका एहसास करेंगे, तो अल्लाह ताला की बड़ाई का, अजमत का आपको पता चलेगा। और ये भी कि ये जो कुछ भी तख्लीक किया गया है, ये ऐसे नहीं बन गया, बिला मकसद या इत्तफाकिया नहीं बन गया, बल्कि इसके पीछे एक खालिक है जिसने इसको मुकम्मल किया है। तो सारा निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला इशारे पर चल रहा है, और जिस दिन अल्लाह ताला का इशारा हुआ वो निज़ाम बिगड़ जाएगा सारे का सारा। तो अल्लाह ताला एक खास मंसूबे के तहत ये तमाम दुनिया चला रहा है। उसने एक खास मंसूबे के तहत इस दुनिया को तख्लीक किया है। कहीं पर गर्मी, कहीं पर सर्दी, कहीं पर पहाड़, कहीं पर दरिया। उसकी हिकमत है क्यों बनाए गए हैं। पहाड़ों पर वो सर्दियों में बर्फ जमा के रख देता है उनकी चोटियों पर, ताकि जब गर्मियां आए तो नीचे वाले इलाके जहां पर ये पानी नहीं होता वहां पर पानी पहुंच जाए। तो ये टैंकियों का काम देते हैं ये पहाड़, तो कि गर्मियों में वो पिघलता है तो वो दरिया के जरिए पानी आप तक पहुंच जाता है, आपकी फसलों तक पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला की हिकमत पर आप अगर गौर करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा।